गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आनंद साहब जी की 21वीं पौड़ी की विचार आरंभ होने लगी है। आओ गुरु दरबार की हाजरी भरीए। विचार आरंभ करने को पहला सारे रल के मूल मंत्र की हाजरी लाइए। एकाग्रता बख्शिश करो। आप सारे रल के मूल मंत्र की हाजरी उपरंत आनंद साहब के विचार आरंभ होगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेको सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे तां सन्मुख सिख कोई। जियो रहे गुरु नाले, जेको सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे तां सन्मुख सिख कोई। जियो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय ध्याए, अंतर आत्म संभाले। आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर ना जाने कोई। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। आप छट सदा रहे परने, गुर बिन अवर ना जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, 21वीं पौड़ी के विचार आपां अज आरंभ कीती है। सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करन, अपने विचार आप करा लैन।
ਸੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੈਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸਾ ਹੈ। ਸੈਸਾ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਨਾ ਮੈਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹਿਜ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੁਚਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣਾ ਹੈ? ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੇਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਸਹਿਜ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਕਾਮ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ,
गुर की करनी काहे धाओ, जदों तू गुरु के कहे अनुसार अपना जीवन जीवन लग पवेगा, सच्चे पातशाह कहते तू ओदी हजूरी विच फिर हाजिर है, ओदी हजूरी विच रहेगा। इसे शब्द दे विच आनंद साहब की 21वीं पौड़ी के अंदर जेको सिख गुरु सेवती सन्मुख होवे, सच्चे पातशाह कहते जेड़ा सिख गुरु की हजूरी विच हाजिर हुंदा है, सदा ही वो अपने आप नूं गुरु दे संग समझदा है, सदा ही वो गुरु नूं अपना सहाई समझदा है, सदा ही गुरु दे ओदे हिरदे विच हुंदा है कि गुरु मेरे सदा ही संग है। होवे तां सिख होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले। वो काम ते कर लिया संसार दे विच, पर ओदा जी किथे लगा है, याद किथे लगी है, उस मालक दे नाल। 6 निशानियां सन्मुख सिख दियां इसे शब्द विच सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू दसण दियां यतन कीता है। पहली निशानी जिहड़ी अगली पंक्ति आउंदी है ना, ओदी पहली निशानी सतगुरु सच्चे पातशाह ने दसी सानू, गुर के चरण हिरदे ध्याए। सब तो पहली निशानी है जी, जदों आपां पढ़दे हां जेको सिख गुरु सेवती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियो रहे। पहली निशानी है जियो रहे गुर नाले। पहली निशानी सन्मुख सिख दी कि वो जी दे नाल उस मालिक दे नाल सदा ही उसनूं अंग संग समझदा है। जिवें गुरबाणी च शब्द आउंदा है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। किथे है ओदा जी, सिख दा जी किथे है, जियो रहे गुर नाले। पहली निशानी सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाए। यदि जी आपां संसार विच उदाहरण लईए ते गुरु प्यारे जदों कोई तस्वीर बनाउंदा है ना, चित्र चित्रवदा है, जदों कोई फोटो बनाउण दा यतन करदा है, ते सब तो पहला उस तस्वीर नूं बनाउण तो पहला उस मालक नूं जां किसी भी चीज दा जदों चित्र बनाउंदा है, ओनूं अपने चित्त विच याद करदा है कि वो तस्वीर किदां दी हो सकदी है। सब तो पहला बनाउण तो पहला असीं देखदे हां कि ओहदा चेहरा मूहरा किदां दा हो सकदा है। चित्र असीं बनाउणा शुरू नहीं करदे, चित्र नूं बनाउण तो पहला उस चित्र नूं असीं अपने मन विच बनाउंदे हां, हिरदे विच बनाउंदे हां उस चित्र नूं। जदों असीं उस चित्र नूं हिरदे विच बना लिया, इसे तरह वाहिगुरू नूं सब तो पहला असीं अपने चित्त विच चितवदे हां। चित्त विच चितविया होया वो वाहिगुरू जिहड़ा है फिर सानू उस मालक दे सन्मुख कर दिंदा है। सब तो पहली निशानी जियो रहे गुर नाले, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू छड़ाए। मैनू भरोसा है सच्चे पातशाह तेरे ते, भावें कोई मैनू दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, पातशाह तू सदा ही मेरे नाल है, सदा ही मेरी सहायता करना है, सदा ही मेरी रखिया करना है। दूजी पंक्ति इत्थे सच्चे पातशाह ने आखी, जिहड़ा दूजी सन्मुख सिख दी निशानी है, गुर के चरण हिरदे ध्याए। सच्चे पातशाह दे चरण जिहड़े ने ना, वो गुरबाणी च पातशाह कहंदे अंतर गुरिया राधना। ओहदे चरण की ने? अंतर गुरिया राधना, जिहवा जप गुरनाम। कहंदे तू अपने हिरदे विच ओहनूं ध्यान दा यतन कर, जेवा तो तू ओहदा नाम जप। दो गल्लां हो गईयां। तीजी गल चरण हिरदे च ध्यान दा, तीजी गल किहड़ी पातशाह ने आखी इसे शब्द च, गुर के चरण हिरदे ध्याए। अंतर गुरिया राधना, जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना। जे तू सन्मुख होना है उस मालक दे, जे तू चाहुंदा है मैं उस मालक दी हजूरी विच हाजिर रवां, ते इन्हां अखां नाल तेरा कर्म की है, इन्हां अखां नाल तू केवल ते केवल उस मालक दा दीदार करना है। इस अखां दे नाल बंदा बहुत कुछ देखता है। ये विस संसार तुम देखते, ये हर का रूप है। सच्चे पातशाह जदों मैं इस संसार च देखदा, मैनू तेरा ही रूप नजर आउंदा है। अंतर गुरिया राधना, जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी कन्ना तो तू की सुनना है। जे तू गुरु दे चरण हिरदे च वसाउने ने, तेनू कन्न भी अपने वाहिगुरू शब्द नाल लाने पैणगे। नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर सेती रतियां, दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक
किरपा करे जिसनो ए वथ दे, जग मैं उत्तम काढ़ी है बिरले के गुरु नूं चरण हिरदे च वसाउण लई सानू सब तो पहला अपनी शरीर, अपनी देही, अपने हिरदे नूं उस मालक दे चरनां नाल लाउणा पवेगा। दूजी पंक्ति गुरु साहब ने आखी, गुरबाणी में शब्द आउंदा है, पहलों दे जाड़े अंदर जम्मै तां उपर होवे छाऊं। सच्चे पातशाह कहते जे कोई दरख्त धरती जड़ नाल लग्या है ते ओदी छां भी घड़ी हुंदी है। जदों तू अपने हिरदे विच उस मालक दे चरनां नूं वसाया है ते तेरा जिहड़ा ये दरख्त है, जेड़ा तेरा ये मन रूपी जिहड़ा दरख्त है, सच्चे पातशाह कहते ये प्रफुल्लित होवेगा, इनू होर सहज मिलेगा, इस विच होर वड्डियां वड्डियाइयां उस मालक दीयां होणगीयां। दूजे पासे सतगुरु सच्चे पातशाह कहते एक ते हैगा कि तू उस मालक नूं अपने हिरदे च वसा, पर जेड़े नहीं वसाउंदे ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਪਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਚਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾ ਬਿਲੋਸ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਧਾਣੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਤੇ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਿਓ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਸੇ, ਤੂੰ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ। ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਵਸਣੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜੇ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਰਾਪਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਤਿਸ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸੇ। ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ। ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਪਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭੋਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ
माले की तीजी निशानी है, जे बाहरों भुल चुक बोलते भी खरे हर भाने। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖਾ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਹੋਂ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ किसी का लेना। हों नाही कीता लभो मैं नाम तेरा है फबो। सच्चे पातशाह मैनू किसी चीज का होर लभ नहीं, लालच नहीं, मैनू केवल ते केवल तेरे नाम की भुख है। चौथी निशानी इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू दसी है। अगली लाइन आती है आप छड्ड। चौथी निशानी है जी आप छड्ड, अपने आप नूं छड्डना। अज भी जिहड़ा सानू गुरु साहब ने हुक्म बख्शिश कीता ना, उहदे विच अपने आप नूं छड्डण दी गल आई है। जदों असीं अपने आप नूं छड्डदे हां, अपनी मैं नूं छड्डदे हां, अपनी हौमे नूं छड्डदे हां, अपने हंकार नूं छड्डदे हां, गुरबाणी च शब्द आउंदा है जी गुर प्रसादी जिन्नी आप भजिया। गुरु की कृपा नाल बख्शिश छड्डिया आपे नहीं जाना। अपने आप नूं बंदा आप नहीं छड्ड सकदा, अपनी मैं नूं बंदा आप नहीं छड्ड सकदा। अज भी आपां शब्द की गुरबाणी में विचार कीती सी सवेरे कि हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न वसै एक थाए। हंकार का नाम दे नाल विरोध है, वैरी ने दोवें एक थां ते नहीं बैठ सकते। जिथे हंकार होवेगा उत्थे नाम नहीं हो सकता, उत्थे तेरा हिरदा शुद्ध नहीं हो सकता। जदों तक तू अपना आपा नहीं गवाउंदा, अपना आपा भाव नहीं छड्डदा, भाव अपनी हौमे नहीं छड्डदा, अपना हंकार नहीं छड्डदा। जिन्हां ने अपना हंकार छड्डिया ना, वो कहते मैं नाही रब सब कुछ तेरा। सच्चे पातशाह मैं ते है ही कुछ नहीं। एक है निर्गुण, जिन्हां ने पछाण लिया उस मालिक नूं, वो कहते एक है निर्गुण उगै सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना आप छड्ड दिता। एक होर शब्द आता है गुरबाणी च, सच्चे पातशाह कहते तज अभिमान मोह माया फुन भजन राम चित लाओ। कहते जिस दिन तू अपना अभिमान तज लिया ना, हौमे नूं तज लिया, हंकार नूं तज लिया, जिस दिन तू पदार्थवादी संसार विचों अपने आप नूं बाहर कढ लिया, अपने आप नूं इस संसार तो छुड़ा लिया, पातशाह कहते उस दिन तज अभिमान मोह माया फुन। इस संसार में सारिया चीजां वरत रही ने, पर तू इन्हां नूं छड्डना है। भजन राम चित लाओ। सच्चे पातशाह कहते जिदन सारा कुछ छड्डिया गया, उदन उस राम का नाम, उस वाहिगुरू का नाम तेरे चित लग जाना है। अगली जिहड़ी निशानी है सच्चे पातशाह कहते जदों आपां गुरबाणी की यह पंक्ति पढ़ी ना, आप छड्ड सदा रहे परणे। आप छड्ड पंजवीं चौथी निशानी है। पंजवीं निशानी है कि सदा रहे परणे। सन्मुख सिख दी पंजवीं निशानी है सदा रहे परणे। परणे तो भाव होता है केवल ते केवल उस मालिक का सहारा होना, कि सच्चे पातशाह मैनू तेरे सहारे तो बिना, तेरे आसरे तो बिना, तेरे भरोसे तो बिना होर कोई भरोसा नहीं। मैं तेरे पे एक आस है। सच्चे पातशाह आस प्यासी फिर कहता है, एक तेरे पे आस है सच्चे पातशाह, तू मेरी एक आस पूरी कर। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। सच्चे पातशाह तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहाई है। इस संसार पे मैनू रखने वाला भी तू है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे। सच्चे पातशाह जो मैं गर्भ में सी उदों भी मैनू तू रखने वाला सी। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखन हारे पाप सागर अथा लैन में तारो तारो हारे। सच्चे पातशाह मैनू तेरा ही आसरा है, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा,
तुम ही सज्जन सुहेले अपा अरदास करिए राखो राखण हार दयाला नानक करके बोले सच्चे पातशाह मैनू केवल ते केवल तेरा सहारा है। अखीरली जिहड़ी निशानी सन्मुख सिख दी सच्चे पातशाह ने दसी वो कहते जिहड़ा सन्मुख सिख हुंदा है ना गुर बिन अवर न जाने कोई। अखीरली निशानी छेवीं निशानी इसे शब्द दे विच आई है। सच्चे पातशाह कहते गुरु तो बिना वो किसी होर नूं कुछ जानता नहीं, केवल ते केवल उस सिख दा सन्मुख सिख दा सहारा वो वाहिगुरु है। सच्चे पातशाह गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे, गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन्न अभन कटे सब तेरे। गुरु ऐसा है गुर नैन बैन गुर गुर करो गुर सत काम नल कह, जिन गुरु ना देखियो नौ कियो से अके हथ संसार में। गुरु सच्चे पातशाह तेरे तो बिना मेरा कोई सहाय नहीं इस संसार विच, मैं सतगुर सेवती पिरहड़ी क्यों गुर बिन जीवा मेरी माए। सच्चे पातशाह मैं तेरे तो बिना जे मैं तेनू जपदा आखां जीवा विसरै मन जाओ, आखण औखा सच्चा नाम। सच्चे पातशाह जदों मैं तेनू ध्याना ते मैं जीना, जे मैं तेनू नहीं ध्याना मैनू इदां लगदा है मेरी आत्मक मौत हो गई है। अखीरली पंक्ति सच्चे पातशाह कहते मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाऊं जेड़े सतगुरु सच्चे पातशाह नू उस मालक तो बिना होर किसे नू जानदे नहीं, वो कहते मैनू केवल ते केवल तेरी गुरबाणी का सहारा है। सच्चे पातशाह मैनू तेरी गुरबाणी का आधार है, गुरबाणी के अनुसार तो अपना जीवन जीवन का जीवन जाच गुरबाणी तो लैके वो अपना जीवन जीवन का यत्न करते हैं। गुरु 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 करमन मोर, गुरु बिना मैं ना ही हो। सच्चे पातशाह मैनू तेरा ही सहारा है, गुरु तो बिना मेरी गत नहीं। गुरु वो है जिहड़ा हनेरे दे विच प्रकाश करता है, गुरु वो है जिहड़ा सदा ही सानू चानण दिंदा है। गुरु दीयां वडियाइयां इन्नियां क वड्डियां ने, जदों असीं वडियाइयां नूं कहने आ, जदों ओहदे आसरा तकदे आ, जदों ओहदी टेक तकदे आ ते सतगुरु सच्चे पातशाह सदा ही साडे नाल हुंदा है। ते जदों ऐसा सिख केवल ते केवल गुरु नूं जाणदा है, गुरु तो बिना किसी होर दा आसरा नहीं तकदा, पातशाह कहंदे ऐसा सिख गुरु दे सामने हुंदा है। सो सच्चे पातशाह ने सानू इस शब्द दे विच 6 निशानियां समझाउण दा यतन कीता है। पातशाह कहंदे जदों आपां एक बारी दोबारा शब्द नूं पढ़ीए, जेको सिख गुरु सेवती सन्मुख होवे, जिहड़ा सिख सन्मुख है ओदी पहली निशानी है होवे तां सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। सब तो पहला ओदा जी गुरु दे नाल रहिंदा है, ओ गुरु दे चरण हिरदे च वसाउंदा है, गुरु कै चरण हिरदे ध्याए। चौथी निशानी अंतर आत्मै संभाले, अपने हिरदे विच उस वाहिगुरु नूं ध्यान दा यतन करदा है। पंजवीं चौथी निशानी है आप छड्ड, अपने आप नूं छड्डदा है, आप छड्ड सदा रहे परणे, सदा ही ओदी टेक ओदा आसरा तकदा है। 6वीं निशानी गुर बिन अवर ना जाने कोई, गुरु तो बिना होर किसे नूं जानदा नहीं। सच्चे पातशाह कहते जदों ये 6 निशानियां तेरे अंदर आ गईयां, कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होई। वो सन्मुख सिख है, वो असी केवल ते केवल सोच लेंदे आ कि असी गुरु घर आए मत्था टेकिया ते असी सामने बैठे आ ते असी सन्मुख हां। सच्चे पातशाह ने इत्थे दस दिता सन्मुख सिख किते भी बैठा होवे, जदों ओदे अंदर ये 6 निशानियां प्रगट हो गईयां, पातशाह कहंदे ओ सन्मुख सिख है। गुरु कृपा करे ये 6 निशानियां साडे अंदर प्रगट होण, असी भी गुरु दे सन्मुख सिख बन सकीए, सदा ही उन्हें ध्याइए ते ओदे चरण अपने हिरदे च वसाइए। गुरु कृपा करे। इतनी हाजरी प्रवान करनी होइयां भुलां चुकां दी खिमा, फतेह दी सान बख्शिश करो। वाहिगुरू जी का खालसा।